ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਮੋਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਾइंड द quadratic polynomial each with given number as a sum and product of its zeros respectively। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ax² + bx + c ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, 1/4। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਡੋਟ ਬੀਟਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੀਟਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, -1। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, 1/4। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax² + bx + c। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ, b। ਇਸ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ, b। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ a। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 4, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਐਂਡ ਕੋਮਾ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। -1 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਸਾਡੇ a ਤੇ b ਫਾइंड ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ c ਫਾइंड ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਅਪੋਨ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, -1। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ c। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ c ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² a ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਅਪੋਨ 4। ਸੋ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4, ਉੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -4। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ax ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, a ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4। ਸੋ 4x ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ bx ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਰੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ -1x। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ c, ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ -4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
तो साडा सैकेंड क्वेश्चन है अंडर 2 इंटू 1/3। तो इसनूं सॉल्व करते हैं। देखो की लिखना है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हुंदी है, वो लिख देंगे ax का स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस ये तो नैक्सट अल्फा प्लस बीटा गिवन है अंडर रूट 2 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। ये तो हुण पता तो लग गए होणगे सानू की गिवन है कि नहीं। तो असी बाय यूजिंग फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। तो सम ऑफ जीरोज गिवन है अंडर रूट 2, असी लिख देंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस द साइन कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट की हुंदा है b, सो b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है a। ओके, तो ये नीचे भी 1 लगा देंगे क्योंकि नीचे 1 लगाना कोई फर्क नहीं पैंदा, तो साड़ी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। तो देखो हुण आ चुके ने, ए दी वैल्यू आई है, ए दी वैल्यू है 1 एंड बी दी वैल्यू आई है माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो बी दी वैल्यू आ चुकी है। हुण मैं इथों माइनस साइन उधर वो करता, तो ए ते बी दी वैल्यू आ गई। हुण असीं करदे हां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला हुंदा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी गिवन से सानू 1/3 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हुंदा है ए। सो इत्थे देखो स्टूडेंट्स, हुण तुसीं इत्थे उलझना नहीं भी ये गलत आ रहा है। इत्थे ए दी वैल्यू आई सी 1, तो असीं इत्थे ए नूं 3 नहीं लिखना, ए दी वैल्यू असीं कितनी पुट करांगे 1। सो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन 1। सी अपॉन 1 मतलब सी, तो सी की वैल्यू आ चुकी है 1/3। ओके, तो हुण असीं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं जो कि बनी है ए एक्स का स्क्वेयर ए 1 है, सो सिंपल एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स का स्क्वेयर, बी है -2 माइनस अंडर रूट 2 दा एक्स प्लस सी है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉलिनोमियल आ चुके। हुण देखो स्टूडेंट्स, जे तुसीं क्वेश्चन इत्थों तक कंप्लीट करके आने हो तुहानूं पूरे मार्क्स मिलणगे, बट तुहाडी NCERT बुक विच जो पिछे सॉल्यूशन विच आंसर दिता होया उस विच की कीता है, जो 1/3 है 3 नूं इस उपर नाल उपरली क्वेश्चन डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई एलसीएम फाइंड करके फिर इनू सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया। तो देखो किमें सिंपलीफाई करांगे, इन्हां दा एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 3, कि एलसीएम आएगा इसका 3, तो 3 उपर हुण देखो इत्थे 1 है, 3 नूं 1 नाल डिवाइड करिया मल्टीप्लाई करिया 3 आएगा, 3 नूं इस नाल करके 3 आएगा, इत्थे 3x का स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस इत्थे नीचे 3 है, तो इसनूं 3 मल्टीप्लाई करके 3 बन जाता 3, तो 3 कैंसल, तो इत्थे 1 आएगा इक्वल टू 0। हुण स्टूडेंट्स आ स्टैप तुहानूं क्लीयर होना चाहिए क्योंकि तो 10th क्लास है, तुहानूं ये एलसीएम करना होना चाहिए। मैं बड़ा फास्ट कराया है, जो तो नहीं समझ आया तुसीं की करना है, इस 3 नूं पहला इस नाल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इन्हां दे नीचे 3 आ जाएगा, फिर उस 3 नूं 3x इस x नाल मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 0। हुण जे थां दी कमी होण कारण असीं इत्थे लिख दिंदे हां, आ 3 0 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इक्वेशन बन जाएगी 3x का स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये साडा आंसर होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तुहानूं समझ आ चुका होएगा। हुण असीं करदे हां अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज
0 एंड अंडर रूट 5। इसनों भी पहला वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हाँ। सो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हुण असी फॉर्मूले का यूज़ करके लिख दें अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज किस इक्वल होंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हम सम ऑफ जीरो सानू 0 गिवन है, सम ऑफ जीरोज ही 0 गिवन है, असी लिख देंगे 0 इज इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स द कोफिशिएंट मतलब b माइनस द b अपॉन a। तो इतने a तो b दोनों की आ गए 0, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, तो ए ते भी 0 आ चुके हैं। हुण असीं करांगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस दे इक्वल हुंदा है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब सानू जो गिवन है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीनस ए तो 0 है, सो इसनों असीं इत्थे नहीं लिखांगे। ओके, हुण तुसीं c अपॉन 0 करता तो आंसर खराब हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू इत्थे निगलैक्ट हो जाएगी और जो साडा c है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5। हुण स्टूडेंट्स तुसीं उलझना नहीं भी इत्थे a की वैल्यू असीं 0 पुट कर दिंदे हां, नहीं, जे तुसीं a की वैल्यू भी 0 पुट कर दोगे तो ये अपने c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 उधर जाके मल्टीप्लाई होएगी। ओके, तो असीं a की वैल्यू इत्थे निगलैक्ट कर देने, कुछ भी नहीं है a की वैल्यू। सो हुण असीं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखते हाँ, वो की बनेगी ax का स्क्वायर मतलब 0x का स्क्वायर प्लस b इत्थे b माइनस है ना, b माइनस है, सो माइनस 0x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो ये साडी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ चुकी है। ओके, तुसीं लिख लेना एग्जाम दे विच। फोर्थ क्वेश्चन इज 1 and 1। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीनोमियल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुसीं इसनूं अपनी नोटबुक्स उपर उतार लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सानू सम ऑफ जीरोज की गिवन है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज गिवन है 1, इत्थे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x होंगे b माइनस द b अपॉन एक्स स्क्वायर a। तो देखो इत्थे a तो b की दोनों वैल्यू की आ चुकी ने, a आई है 1 के इक्वल, क्यों 1 के इक्वल क्योंकि नीचे की होंगे 1 एंड b आया -1 इक्वल। ओके, तो a तो b आ चुके हैं। हुण असीं करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 गिवन है, सो कॉन्स्टेंट टर्म है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a। सो a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी की आ चुकी है 1।
सो असी लिख देंगे c इज़ इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये सब कुछ 1 1 1 आया है, तो साडी इक्वेशन की बनेगी 1x दा स्क्वायर माइनस x 1x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हुण असीं इत्थों 1 नूं निगलैक्ट भी निगलैक्ट मतलब किसी अखर नाल 1 मल्टीप्लाई होवे उहनूं लिख भी सकदे आ, नहीं भी लिख सकदे। तो इसनूं सिंपली असीं लिख सकदे आ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तुसीं इस विचों कोई भी आंसर लिख सकदे हो जो तुहानूं वधिया लगे, ठीक है। ये दोनों आंसर सही ने। अगे करते हैं 5th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आई थिंक तुहाडी प्रैक्टिस हो चुकी होएगी, असीं पहलां 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन फस्ट ऑन फास्ट करते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल इक्वेशन की हुंदी है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो साडा सम ऑफ जीरोज़ का बराबर है सम ऑफ जीरोज़ इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तुसीं इत्थे माइनस साइन इत्थे भुलना नहीं, जे माइनस साइन भुल गए तो इक्वेशन खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सम ऑफ जीरोज -1/4 गिवन है इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो इत्थों ए की वैल्यू आ चुकी है 4, ए इज़ इक्वल टू 4 एंड बी इज़ इक्वल टू -1। बी किस दे बराबर है, सॉरी स्टूडेंट्स इत्थे बी नाल माइनस भी है, तो माइनस ना माइनस कैंसल हो गई तो बी आ गया +1, ठीक है। ध्यान रखना है। तो हम देखो सम ऑफ जीरोज़ हम असीं करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब की है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 गिवन है एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो ए की वैल्यू देखो 4 आ रही है, इत्थे 4 है तो ए 4 ही है। सी की वैल्यू सॉरी स्टूडेंट्स इत्थे पुट करनी है 4 नहीं, तो 1/4 इज़ इक्वल टू सी अपॉन 4। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4 ऊपर चला जाए 1/4 इज़ इक्वल टू सी बाय ए की वैल्यू है 4। इत्थों 4 उधर चला जाएगा, जो इत्थे आ जाएगा तो 4 ना 4 कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगी सी, तो 1 इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 1। तो हुण असीं इसनूं लिख दिंदे हां 4x दा स्क्वायर प्लस x प्लस सी इज़ इक्वल टू सी नहीं सर स्टूडेंट्स 1। 4x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b 1 है, तो सो इत्थे लिखता है x प्लस c 1 है। तो हुण असीं करदे हां 6th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। तो इसनूं वैसे तुसीं खुद ही करके देखना है, पर मैं इत्थे करा दिंदा। तो स्टूडेंट्स लिखदे हां तो साडी गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन की हुंदी है, तुसीं लिखना है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 एंड फिर तुसीं बाद विच की लिखना है, इस तो बाद इस स्टैप तो बाद अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1। फिर लिखना है सम ऑफ जीरोज़। ये मैं क्यों नहीं लिखा रहा, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन विच असीं लिख चुके हैं। हुण तुसीं खुद ही लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दा स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज़ 4 गिवन है इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीनस बी अपॉन ए। हुण तो प्रैक्टिस होएगी, हुण माइनस बी अपॉन ए ही आएगा इस साइड। तो ए की वैल्यू कितनी होएगी 1, ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू माइनस दा 4, क्योंकि माइनस उस साइड चला जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 गिवन है, कांस्टेंट टर्म है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, इत्थे 1 पुट करांगे तो उधर जाके 1 ही रहेगा। सो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो साडी गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन की आ गई है ए एक्स स्क्वायर मतलब ए है 1, तो सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
b है -4 प्लस c है 1 = 0। तो ये साडा आंसर आ चुका स्टूडेंट्स। हुण असीं एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके हाँ। नैक्सट वीडियो विच असीं करांगे अगली एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स तुसीं वध तो वध लाइक शेयर ते कमेंट करना। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया वो तुसीं कमेंट बॉक्स विच पुट कर सकदे हो। ओके तो